Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDF practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right, so let's start reading this particular set. Let's try to understand the set. This is a previous year set and this is a very interesting set, right? Let's try to first understand this very clearly and then we'll move on to the solution. So what does this say? 10 objects O1, O2, O3 and so on till O10. So they're basically 10 objects. They were distributed among Amar, Barrett, so strange name basically, Barrett, Charles, Disha and Elise, right? Each item went to exactly one person. So basically there are 10 items and there are 5 people. It is saying each item went to exactly one person. So O1 किसी एक के पास ही जाएगा among these 5 people. Each person got exactly 2 of the items, right? And this pair of objects is called his or her bundle. Now, let's understand. यहाँ ऐसा scenario बिल्कुल भी नहीं है. There is no scenario as such which is described here कि there is an object which belongs to 2 people, right? So every object is unique to a specific person, and also because each person has 2 objects out of these 10. And there are 5 people, so that is the way these 10 objects are actually distributed, 2 for each person. So let's say if O1 and O2 belong to Amar, O1 and O2, neither of them can belong to any other person. So each person will occupy 2 out of these 10, and that way these 10 are actually distributed, right? So far so good, easy to understand. Now, the following table shows how each person values each object. Now, this is very important to understand. यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, like the following table shows how each person values each object. ये पार्ट थोड़ा सा क्रूशियल है, बिकॉज फर्स्ट इंस्टेंस पे जब आप इस टेबल को देखते हो तो यू सी अच्छा अमर को O1 4, सो अमर में O2 9, देन बरट का भी O1 5 या बरट का O2 9, मल्टीपल पॉसिबिलिटी, एक पूरी ग्रिड बनी हुई है. सो टू अंडरस्टैंड दिस लास्ट पार्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ ईच पर्सन वैल्यूज ईच ऑब्जेक्ट. You should actually read this example, right? तो यहाँ पे पूरा example आपका it is actually given in these 2 paragraphs. The value of any bundle by a person is the sum of that person's values of the objects in that bundle. Now ये क्या बोल रहा है? For example अमर के पास let's say O1 and O2 objects है, ठीक है? तो अमर would value O1 and O2, that is his bundle, at 4 plus 9, that is 13 units. Suppose Amar has O4 and O5, then Amar will value his bundle at 3 plus 7. Right? That is what is mentioned. Now, a person X envies, now this is important, a person X envies another person Y if X values Y's bundle more than X's own bundle. Now, this is very crucial to this set. Let's understand this very clearly. क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑल्सो. यही एक्चुअली में ना नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. आई विल एक्सप्लेन टू यू इंडिविजुअली. जैसे अमर लेट्स से हैज O1 and O2, right? Amar let's say has O1 and O2, and let's say Bharat has let's say O3 and O4, right? So he has O3 and O4. Now according to Amar, his bundle, that is O1 and O2, is valued at what? 13. तो अमर का खुद का बंडल इज फॉर 4 plus 9, that is 13. And अमर के करस्पॉन्डिंग अमर वैल्यूज भरत बंडल as 9 plus 3, that is 12. तो इस लाइन ने क्या बोला था यहाँ पे? A person X envies another person Y if X values Y's bundle more than X's own bundle. तो अमर जो है वो भरत का बंडल जो वैल्यू करेगा, तो अमर ने खुद का बंडल का वैल्यूएशन लगाया 13, अमर ने बैरेट के बंडल का वैल्यूएशन क्या करा? 9 plus 3, that is 12. तो उसके खुद का बंडल का वैल्यू 13 है और बैरेट के बंडल का वैल्यू उससे लेस है, that is 12 है. सो इन दैट केस अमर विल नॉट एनवी बैरेट. बट व्हेन इट कम्स टू बैरेट, लेट्स से सेम डिस्ट्रीब्यूशन, अमर के पास O1 and O2 है एंड बैरेट के पास O3 and O4. लेट्स टेक दैट एग्जांपल इटसेल्फ. नाउ व्हेन वी टेक दिस विद रिस्पेक्ट टू बैरेट के करस्पॉन्डिंग, बैरेट के वैल्यूएशन पैरामीटर्स के हिसाब से देखो, तो बैरेट के हिसाब से अमर का वुड बी 9 plus 5, that is 14. एंड बैरेट का खुद का ही वैल्यूज हिज बंडल, that is O3 and O4, at 7 plus 5, that is 12. तो बैरेट का खुद का वैल्यूएशन फॉर हिज बंडल इज 12, बट बैरेट का वैल्यूएशन फॉर अमर्स बंडल इज 14. तो बैरेट के लिए क्या होगा? अमर का ज्यादा वैल्यूएबल है,
then Barrett will actually envy Amar. Right? So that is what is mentioned in this particular scenario. Right? ये envy वाला part आपको ना बहुत clear होना चाहिए. Every person can like own his bundle. मतलब कुछ ये तो फिक्स करना पड़ेगा कि अमर के पास O4 या O5 क्या है, ये तो ऑब्वियसली ये सेट बताएगा, बट अलग अलग पर्सन उस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी बंडल होगा फॉर मैटर उसका वैल्यूएशन अलग अलग लगा सकता है, एंड दैट इज हाउ दिस ग्रिड इज एक्चुअली फॉर्म. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, बिकॉज ये सबसे क्रूशियल होने वाला है इस पर्टिकुलर सेट को सॉल्व करने के लिए. नाउ इन दिस थर्ड पैराग्राफ इज बेसिकली दैट एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड, वही चीज जो मैंने आपको नंबर्स के साथ समझा है ना, एक्जैक्टली सेम वैल्यूएशन आपको यहाँ पे भी समझा रखी है. ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली गो एंड रीड दिस ऑल्सो. दिस एग्जैक्टली सेज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग नाउ. Now, the following facts are known about the actual distribution of the objects among the 5 people. So, there are certain conditions and we have to basically figure out, because if I take a look at the problems, what best can be said about object O8 was given to Disha, Amar chose Disha. So there are possibilities also, and maybe there is a unique answer also. Both kind of options are there. Who among the following envies someone else? So it has to be unique for that matter. So what is Amar's value for his own bundle? I have to give the value. Object O4 was given to, so that has to be unique obviously. There were options in this obviously. So due to lack of space, I have excluded that part. But there were options, right? The unique options were there, right? CBD was not there. What best can be said about the distribution of object O1? Again, there are possibilities also, and there is like unique cases also. So let's start solving this with the understanding we just had. So we need to figure out कि किस person को कौन सा bundle मिला है. What are the two objects that belong to a specific person? So let's start reading this. The first point: if someone's value for an object is 10, then he or she received that object. Now सबसे पहले 10 पे फोकस करना चाहिए. 10 इस पर्टिकुलर टेबल में आपको कहां पे दिख रहा है? बैरेट का ये O9 वाला ये 10 दिख रहा है. तो इसने क्या बोला है, अगर किसी ने कोई चीज 10 पे वैल्यू करी है तो ही और शी रिसीव दैट ऑब्जेक्ट, तो फिक्स हो जाएगा. तो बैरेट ने O9 को 10 वैल्यूएशन दी है ना, दैट मींस बैरेट के पास O9 होगा. सो वी कैन लाइक पुट दैट इन अ बॉक्स, मतलब दैट इज स्पेसिफिक. अच्छा, ऑल्सो विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. बैरेट के पास अगर O9 है तो other 4 people will not have O9, right? So I can simply go ahead and cross this out. ये सब कुछ क्या कर देते हैं, क्रॉस आउट करते हैं. याद रहेगा अपने को, other people cannot have O9 because Barrett has O9. Now there is one more 10, right? For Elise, Elise का यहाँ पे भी क्या है, 10 है, because Elise has 10 होना ही पड़ेगा. तो बाकी नंबर भी यहाँ पे क्रॉस आउट कर सकते हैं. No other person can have this O10 because O10 only belongs to one person. So that first point is clear. This point is actually done. Next, objects O1, O2, O3, right? O1, O2, O3 were given to 3 different people. Now this is saying ये जो O1, O2, O3 है, ये तीनों, these belong to 3 different people. So ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से कोई दो एक ही पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है. सो किसी के पास अगर O1 है तो O2, O3 नहीं हो सकता. किसी के पास अगर O2 है तो O1, O3 नहीं हो सकता. किसी के पास अगर O3 है तो O1, O2 नहीं हो सकता. एट मैक्स किसी एक के पास यहाँ पे इन तीनों में से एक ही होगा, राइट? दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड. And similarly, we have that third point also. Objects O1 and O8 were given to different people. तो O1 and O8 कभी भी सेम पर्सन के पास नहीं होगा. अगर O1 है तो O8 नहीं होगा, अगर O8 है तो O1 नहीं होगा. ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं. ठीक है, तो we'll have to keep this. अभी बहुत ज़्यादा कुछ कंक्लूड नहीं कर पाए. We'll come back to this later, right? Then 3 people value their own bundles at 16. No one values his or her bundle at a number higher than 16. तो मैक्सिमम जो सेल्फ वैल्यूएशन से अमर का खुद का वैल्यूएशन, दूसरे का वैल्यूएशन अमर अगर करेगा तो दैट कैन गो बियॉन्ड 16. वो पॉसिबल है, उसको मना नहीं करा इसने. यहाँ पे क्या बोला है, 3 people value their own bundles at 16. तो खुद का जो वैल्यूएशन वाला है वो 2 नंबर ऐड करके क्या आएगा, 16 आएगा. एंड नो वन वैल्यूज हिज और ओन बंडल एट अ नंबर हायर देन 16. तो सेल्फ वैल्यूएशन वाला कभी भी 16 से ऊपर नहीं जाएगा. एट मैक्स 16 हो सकता है. नेक्स्ट, दिशा वैल्यूज हर ओन बंडल एट एन ऑड नंबर. सो दिशा का जो खुद का सेल्फ वैल्यूएशन वाला पार्ट है, दैट इज एन ऑड नंबर. 2 नंबर का एडिशन यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए. सो ऑड के बेस पे आप क्या बोल सकते हो, 1 नंबर हैज टू बी इवन एंड द अदर नंबर हैज टू बी ऑड. दोनों ऑड या दोनों इवन नहीं हो सकता, बिकॉज सम को क्या बनाना है, ऑड बनाना है. सो दिशा वैल्यूज हर ओन बंडल एट एन ऑड नंबर. ऑल अदर्स वैल्यू देयर ओन बंडल्स एट एन इवन नंबर. तो बाकी अमर, बैरेट, चार्ल्स और एलिस का टोटल जो आपका सेल्फ वैल्यूएशन वाला नंबर है, इट हैज टू बी इवन. नाउ थोड़ा सा फोकस करते हैं. जैसे वी नो फॉर 2 people एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स, राइट?
बैरेट के लिए और एलिस के लिए। नाउ बैरेट के लिए अगर आप नोटिस करो तो क्या हो सकता है, इस 10 में समथिंग एड अप करके आपका क्या बनना चाहिए, आपका इवन नंबर बनना चाहिए। तो 10 एक ऑलरेडी खुद एक इवन नंबर है, तो इसमें इवन नंबर ऐड होगा। नाउ 10 में इवन नंबर क्या क्या पॉसिबल है इस रो में, तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, आइदर इट इज 6 और इट इज 8। बट प्रॉब्लम ये है 8 कैन नॉट बी दैट नंबर, बिकॉज फिर बैरेट का सेल्फ वैल्यूएशन वाला नंबर कितना हो जाएगा, 10 + 8। अगर बैरेट के पास ओ 8 यानी ये 8 हुआ तो उसका सेल्फ वैल्यूएशन वुड बिकम 18, बट सेल्फ वैल्यूएशन का मैक्स नंबर कितना है आपका 16 है, दैट इज ऑल्सो फॉर 3 पीपल। तो 18 तो नहीं जा सकता, दैट मीन्स बैरेट का इवन अगर बनना है तो 10 के साथ क्या आएगा आपका 6 ही आएगा। सो नाउ वी कैन एक्चुअली गो एंड फिक्स दिस कि बैरेट का क्या है यहाँ पे 6 है और इसका क्या बन गया आपका 18 बन गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एंड ऑल्सो क्या कर सकते हो आप बैरेट का, बिकॉज दोनों नंबर पता चल गया है, तो बैरेट में ये सारे नंबर्स आप क्या कर सकते हो, क्रॉस आउट कर सकते हो। दिस इज ओनली फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। 6 and 10 इसका आएगा। नाउ अ सिमिलर थिंग कैन बी लाइक थॉट फॉर एलिस एज वेल, राइट। एलिस का भी इवन नंबर बनना है, एलिस का 10 प्लस समथिंग करके इवन बनेगा। इस रो में देखो तो आइदर वी हैव अ 6 एज इवन नंबर, 6 ऑल्सो 3 जगह पे है। अच्छा ऑल्सो यहाँ पे 6 है तो ये भी क्रॉस आउट कर सकते हो आप, ये नहीं पॉसिबल है, राइट, बिकॉज O7 बिलोंग्स टू बैरेट, तो अब O7 किसी के पास नहीं है, राइट। तो 10 में इवन नंबर जोड़ना पड़ेगा तभी ओवरऑल इवन बनेगा। सो 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऑल्सो एक और 6 है, तो आइदर वन ऑफ दी 6 या फिर आपका 8। द सेम प्रॉब्लम अगेन, लाइक 10 के साथ आप 8 की पेयरिंग नहीं कर सकते हो, बिकॉज सेल्फ वैल्यूएशन में फिर नंबर एलिस के लिए क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम कितना जा सकता है 16, तो इसका 10 के साथ 6 बनना ही पड़ेगा। दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे 18 क्यों लिखा है, 16, माय बैड, दिस इज 16, राइट। सो दिस इज 16 एंड दिस इज ऑल्सो नाउ 16, बट प्रॉब्लम ये है इस 10 के साथ कौन सा 6 आएगा, वी डोंट नो दैट, राइट। इट कुड बी आइदर दिस 6 और इट कुड बी दिस 6। सो वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज एज ऑफ नाउ, वी कैन नॉट रियली गो अहेड एंड से कि कौन सा 6 अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ एक्चुअली वी कैन गो अहेड एंड थिंक who is that other person, who is that third person who can have a self valuation of 16 for his bundle, because it can either be Amar or Charles, right? I hope this is clear. Now let's think, let's do a bit of case work, let's analyze, right? Can Amar have a like self valuation of his bundle for 16? अब इसको सोचने के लिए ना आपको ना इस लास्ट वाले कंडीशन पे आना पड़ेगा। Let's read this condition very carefully because this gives the crack to other scenarios. ठीक, क्या बोला? Some people, right? Some people who value their own bundle less than 16 envy some other people who value their own bundle at 16. That means basically there are 3 people, right? 16, 16, 16. Self valuation में 16 देने वाले 3 लोग हैं. There are 2 other people out of which we already know Disha would be one of them, right? Because इसका odd number है तो इसमें से belong तो नहीं करती. So one is Disha and there is one more person, right? Now that could be Amar and Charles, that other even वाला person. Now इसी के लिए रेफर करता है वो, क्या बोलता है? Some people who value their own bundles less than 16, right? So इनकी बात कर रहा है, वो भी some की बात कर रहा है, maybe not both of them, one of them maybe. Some people who value their own bundle less than 16 envy some other people who value their own bundle at 16. तो इनमें से कोई एक पर्सन है जो इनमें से कुछ लोगों को एनवी करता है, 16 वालों को एनवी करेगा। तो 16 वालों को एनवी करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एनवी का लॉजिक क्या था? इनमें से जो भी पर्सन वो है जिसके बारे में ये बात हो रही है, सम पीपल, उसका खुद का जो वैल्यूएशन होगा एंड उसने जो इनमें से कुछ लोगों का वैल्यूएशन कर रखा होगा, उसके हिसाब से, उस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से ये वाली वैल्यू जो इनमें से इनकी कुछ वैल्यूएशन उसने कर रखी होगी, इनमें से जो एक पर्सन है जिसकी बात हो रही है, उनकी वैल्यूएशन उसने ज्यादा कर रखी होगी, तभी तो एनवी करेगा। आई विल रिपीट दिस पॉइंट। इनमें से कोई एक पर्सन है, सम पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल लेस देन 16, आउट ऑफ दीस, इनमें से जो पर्सन एनवी कर रहा है वो किसको एनवी कर रहा है? जिन्होंने खुद की वैल्यू 16 कर रखी है। तो एनवी करने का लॉजिक क्या था स्टार्टिंग में, कि आप खुद की वैल्यूएशन करते हो और आप दूसरे पर्सन की खुद की वैल्यूएशन करते हो, राइट? दूसरे पर्सन की उसकी वैल्यूएशन नहीं, दूसरे पर्सन के पास जो भी बंडल है उसकी आप क्या वैल्यू करते हो। अगर वो वैल्यू आपसे ज्यादा है देन यू विल एनवी दैट।
तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये जो पर्सन है इसका तो 16 से लेस है, ये अगर दूसरे की वैल्यूएशन कर रहा है तो उसका 16 या 16 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वैल्यू मतलब उसको एनवी करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट थिंकिंग, कैन अमर बी दैट पर्सन, राइट? कौन सा पर्सन? द सेकंड 16 वाला, थर्ड 16 वाला पर्सन। अब ऐसे समझना, भरत का भी ऑलरेडी नो, राइट? भरत का भी ऑलरेडी नो कि उसका क्या है, 6 है, मतलब O7 और O9 मिला है, तो भरत का O7 O9 का अमर जो वैल्यूएशन कर रहा होगा, अब समझना, अमर जो वैल्यूएशन कर रहा होगा वो क्या होगा आपका 8 और 9, दैट इज 17, राइट? अमर ने भरत का जो वैल्यूएशन करा है वो क्या करा है, O7 O9 को कितना पॉइंट दिया, मतलब एक तरीके से वैल्यूएशन 8 एंड 9, दैट इज 17। नाउ इफ अमर इज दैट पर्सन जिसका 16 है, दैट थर्ड पर्सन हु हैज सेल्फ वैल्यूएशन ऑफ 16, तब तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा ना, बिकॉज अमर का अगर 16 है सेल्फ वैल्यूएशन, राइट, तो अमर जो है वो भरत को क्या वैल्यूएशन दे रहा है, 8 + 9 दैट इज 17, तब तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना, बिकॉज इसमें क्लियर कट लिखा था कि एनवी कौन करता है, सम पीपल हु वैल्यू देयर ओन मंडल लेस देन 16, they are actually going to envy people who value their own mandal at 16. So अमर अगर खुद का like 16 कर रहा होता तो फिर वो भरत का फिर 17 करेगा, बट फिर 16 वाला पर्सन like जिसने सेल्फ वैल्यूएशन 16 करी है, दैट इज भरत, उसको एनवी नहीं कर सकता ना, जिनका 16 से लेस है वो एनवी करेंगे भरत को, राइट? आई होप दैट पार्ट इज क्लियर, एंड हेंस आई कैन एक्चुअली गो एंड कंक्लूड कि अमर इज नॉट दैट थर्ड पर्सन who has that 16 नंबर। तो 16 फिर किसके पास आ जाएगा, आपका चार्ल्स के पास आ जाएगा, एंड फिर ये आपका इवन नंबर बनेगा, बस यही आपको पता रहेगा, राइट? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर अप टिल दिस पॉइंट, राइट? तो चार्ल्स का 16 होगा, अमर का आपका इवन होगा, वी नो दिस फॉर श्योर। नाउ व्हेन इट कम्स टू चार्ल्स 16 बनना है, अब 16 कैसे बनेगा? देखो 16 बनने के लिए या तो आप दो ऑड नंबर जोड़ोगे या तो आप दो इवन नंबर जोड़ोगे। 16 इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू ऑब्जर्व कि 16 कैन बी मेड आउट ऑफ, 16 कैन बी एक्चुअली मेड आउट ऑफ व्हाट, 2 8। 16 आप कैसे बना सकते हो, 2 8 से बना सकते हो। और कोई तरीका है क्या? अगर इवन नंबर रखोगे तो आपको 8 एंड 8 बनाना पड़ेगा। क्या आप 16 को दो ऑड नंबर से बना सकते हो? अगर आप इस रो में रिमेनिंग नंबर्स देखो तो आपके पास ऑड नंबर सिर्फ एक 3 बचा है, तो 3 के साथ तो आप 16 नहीं बना सकते हो। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि चार्ल्स का 16 8 एंड 8 से बन रहा है। नाउ व्हाट दोस 2 8s कैन बी? नाउ चार्ल्स का अगर आप नोटिस करो तो 3 8 यहाँ पे 1 2 3 में और एक अकेला 8 आपका 8 पे। नाउ इसने क्लियर कट बोला था ना ये सेकंड वाला पॉइंट, नाउ दिस विल बिकम वेरी रिलेवेंट, दिस एंड थर्ड पॉइंट बोथ ऑब्जेक्ट्स O1 O2 O3 वर गिवन टू 3 डिफरेंट पीपल। तो चार्ल्स को इसमें से कोई एक ही मिल सकता है एट मैक्स, तो उसका दूसरा 8 कहां से आना पड़ेगा, O8 से आना पड़ेगा। दैट मीन्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर 2 8 चाहिए, इधर से एक ही आ सकता है, तो दूसरा 8 यहां से डेफिनेटली आना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां वाला ये 8 क्या है, फिक्स्ड है। नाउ बिकॉज ये 8 फिक्स्ड है तो इसके उस पूरे कॉलम में आप क्रॉस आउट कर सकते हो चीजें। नाउ लेट्स एनालाइज व्हाट कैन बी दैट सेकंड वाला 8। इन तीनों में से कौन सा 8 हो सकता है? नाउ एक चीज कंडीशन आपकी दी थी है थर्ड वाला, O8 के साथ कभी O1 नहीं आ सकता ना, बिकॉज O1 एंड O8 ऑलवेज बिलोंग टू 2 डिफरेंट पीपल। दैट मीन्स चार्ल्स को ये वाला 8 नहीं मिल सकता, इसको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं, राइट? दिस इज गॉन। नाउ लेट्स एनालाइज कि क्या चार्ल्स का ये वाला 8 या फिर ये वाला 8 होगा। इन दोनों को सोचना हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स से इफ चार्ल्स हैज दिस O2 वाला 8, राइट? इफ चार्ल्स हैज दिस O2 वाला 8, तो इसका क्या हो जाएगा 8 + 8। नाउ एक प्रॉब्लम है, अब ये ऐसे समझना, अगर इसका ये वाला 8 हुआ, राइट, अगर चार्ल्स का ये वाला 8 हुआ, दिस 8, राइट, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर टू शो दिस। अगर चार्ल्स का ये वाला 8 हुआ तो फॉर एग्जाम्पल बैरेट की बात करो आप, ठीक है? अगर चार्ल्स का ये वाला 8 रखा तो बैरेट जो है वो चार्ल्स का क्या वैल्यूएशन करेगा? तो अगर बैरेट के करस्पॉन्डिंग चार्ल्स के वो क्या था अपने ग्रुप का, ठीक है, बंडल का अगर आप वैल्यूएशन देखो जो भरत करेगा, भरत क्या करेगा, उसका वैल्यूएशन 9 + 8 17 कर देगा, राइट? अब आई होप ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखने वाला है यहां से। बैरेट का खुद का वैल्यूएशन 16 का है,
अगर आप चार्ल्स का ये वाला 8 देते हो और ये वाला 8 तो फिक्स्ड ही है, तो भरत जो चार्ल्स का वैल्यूएशन करेगा वो ये 9 प्लस 8 करेगा, दैट इज 17 कर देगा। तो खुद का वैल्यूएशन 16 कर रहा है और दूसरे वाले का 17 कर रहा है, तो एनवी करना पड़ेगा ना। लेकिन ये दोनों वो पर्सन है ना जिनका दोनों का 16 है सेल्फ वैल्यूएशन में, तो ये एक दूसरे को एनवी नहीं कर सकते। एनवी हमेशा कौन सा करता है, लेट्स अगेन रिकॉल, जिसका 16 से लेस है। एंड दैट मींस ये हमारा अजम्पशन गलत है, ये अजम्पशन गलत है। दैट मींस वी कैन से कि यहां पे आपका ये 8 नहीं होगा। नाउ वी कैन एक्चुअली गो एंड फिक्स कि ये जो चार्ल्स का 8 दूसरा वाला आना है वो ये भी नहीं है, वो कौन सा 8 होगा आपका, दिस 8। एंड बिकॉज ये 8 है तो आप बहुत कुछ क्रॉस आउट कर सकते हो। आप ये गया, ये गया, ये गया और यहाँ पे पूरा रो चला जाएगा। राइट, सो फार सो गुड, ये हमने डिसाइड कर लिया। सो वी हैव टेकन केयर फॉर भरत, वी हैव टेकन केयर फॉर चार्ल्स, वी हैव टेकन केयर फॉर एलिस का 10 एंड इन दोनों 6 में से कोई एक 6 आना पड़ेगा। नाउ और क्या सोच सकते हैं ऐसे। अब अमर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अमर का टोटल क्या बनना है आपका, इवन बनना है। राइट, अभी अमर का इवन बनना है, तो इवन बनने के लिए आदर वी नीड 2 इवन नंबर्स और वी नीड 2 ऑड नंबर्स। अब अमर का इस वाले रो में देखो जो रिमेनिंग नंबर है, क्योंकि अभी तक एक भी नहीं मिला है, तो यहाँ पे रिमेनिंग नंबर क्या है, 4, 9, 3 एंड 7, बाकी तो 3 रिपीट हो रहा है, 4, 9, 3 एंड 7। तो एक्सेप्ट फॉर 4 ऑल द 3 नंबर्स आर ऑड। तो यहां तो मेरे को कभी 2 इवन वाला केस मिलेगा ही नहीं। आई कैन नॉट हैव 2 इवन बिकॉज अकेला एक ही 4 इवन नंबर है। दैट मीन्स आई कैन से कि अमर का वो जो इवन नंबर बनना है टोटल उसके बंडल का सेल्फ वैल्यूएशन वाला नंबर, इट कैन नॉट बी 4। तो 4 यहां से एक्चुअली में एलिमिनेट हो जाएगा। राइट, सो 4 इज कैंसल्ड आउट। नाउ आउट ऑफ दीज 3, 7 एंड 3 वी नीड 2 नंबर्स। अब वो कुछ भी हो सकता है, मे बी 3, 3 हो सकता है, 7, 3 हो सकता है, या ये 7, 3 हो सकता है। विल हैव possibilities also for दिशा। अभी तक आपको बहुत कुछ नहीं पता है, मल्टीपल possibilities आते हैं for दिशा। also for एलिस we are still stuck at that point कि 10 plus either it is this 6 और 10 के साथ it is this 6 now। लेकिन यहां से अब आपको चीज समझनी पड़ेगी how to proceed in this। अमर के लिए we know there are 3 possibilities, like 3 possibility, 3, 3, 7, 3 या फिर ये वाला 7, 3 पॉसिबिलिटीज है। दिशा के लिए तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है बिकॉज अभी आपने को यही से पता है कि ऑड नंबर बनना है। अब ऑड नंबर तो बहुत तरीके से बन सकता है, एक इवन एक ऑड, उसमें भी इवन और ऑड के मल्टीपल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इन दोनों को लेके तो केस वर्क करने का लाइक कोई पॉइंट नहीं बनता है। किससे स्टार्ट करें, वी कैन एक्चुअली गो एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ केस वर्क विद रिस्पेक्ट टू एलिस, क्योंकि एलिस के लिए आइदर इट इज दिस 6 और इट इज दिस 6। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो व्हाट आई कैन क्विकली डू, वैसे आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, आई हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू कॉपी पेस्ट। मैं बस क्या करता हूँ, ये सिनेरियो बस एक बार क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ एंड लेट्स क्विकली डू दिस। पहले मैं ये पूरा एग्जैक्ट सिनेरियो बनाऊंगा। एक सिनेरियो में यहाँ पे 6 दे दूंगा ये वाला, और दूसरे सिनेरियो में 6 दे दूंगा मैं ये वाला। ठीक है, तो लेट्स क्विकली डू दिस। जहां तक हमने कर रखा है क्रॉस क्रॉस क्रॉस, देन यहाँ पे क्रॉस क्रॉस, दिस क्रॉस क्रॉस, ये वाला उठाया है हमने, दिस इज गॉन, देन दिस क्रॉस क्रॉस, देन 5, 6 गॉन, देन 3, 4 गॉन, then this 8 gone, 6 has to be selected, बाकी ये सारे गए। this cross cross, this 8 is there, this 4 and this 3 gone, then यहाँ पे 9 gone, then यहाँ पे 10, this is 9 9 और ये वाला भी गया, then finally this ये सारे गए and finally we are left with this 10। राइट, सो एग्जैक्ट सेम सिनेरियो रिपीट कर दिया। नाउ विल जस्ट चेंज द कलर, सो आपको क्लैरिटी रहेगी। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं 2 पॉसिबल केसेस लूंगा। पहला पॉसिबल केस जब मैं क्या करूँ, एलिस में ये वाला 6 दे दूँ, लेट्स से दिस पॉसिबिलिटी, एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी जब मैं एलिस में दूसरा वाला 6 इसको दे दूँ। राइट, नाउ लेट्स क्विकली कैंसिल आउट एवरीथिंग। तो यहाँ से ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ये आपको दोनों मिल गए आपको नंबर, तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा पूरा। राइट, सिमिलरली यहाँ पे ये 6 दिया आपने, तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ऑल्सो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस, और ये वाला भी क्रॉस आउट हो जाएगा। नाउ व्हाट डज दिस मीन, सेकेंड वाले सिनेरियो में देखो थोड़ा ज्यादा बेटर दिख रहा है। क्या बेटर दिख रहा है, O1 किसी एक को तो मिलना था, तो O1 किसको मिलेगा, फिर दिशा को मिलेगा, तो दिशा का ये फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड दिशा का बिकॉज ऑड नंबर बनना है, तो 8 के साथ क्या ऐड होगा, फिर 8 के साथ 8 इज एन इवन नंबर, राइट, तो इवन नहीं ऐड होना चाहिए बिकॉज
आपको सम क्या बनाना है, ऑड, तो इसके साथ ऑड ही नंबर आएगा, तो इट इज आइदर 5 5 और 3 इनमें से कुछ आना चाहिए। तो वी कैन व्हाट डू, सेकंड वाले सिनेरियो में ये 8 क्रॉस आउट हो जाएगा। अच्छा यहाँ 8 क्रॉस आउट हो जाएगा तो यहाँ पे O2 फिर किसको बिलोंग करेगा, अमर को बिलोंग करेगा। सो ये आपका 9 बन जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ऑल्सो इस फर्स्ट सिनेरियो में भी हम क्या कर सकते हैं, इसने क्या बोला था, O1 O2 O3 बिलोंग टू डिफरेंट पीपल, तो एलिस के पास अगर ये 6 है तो यहां से आपका ये क्रॉस आउट हो जाएगा, राइट, ये क्रॉस आउट हो गया। नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये क्रॉस आउट हो गया, इसमें ये 9 है या फिर आपका 8 है, इसको ऑड बनना है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर नोटिस करो दिशा के लिए टोटल ऑड बनना है, अगर इसका ऑड बनना है तो या तो क्या, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, इवन और ऑड आना चाहिए, तो इसमें एक ही आपका इवन नंबर बचा है, दैट इज 8, और बाकी 5 5 3 तो ऑड नंबर है, दैट मीन्स इवन आना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 फिक्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इसमें ये 8 फिक्स हुआ तो यहाँ पे ये 9 क्या हो जाएगा आपका क्रॉस आउट हो जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं, लेट्स से फर्स्ट केस को पहले, अब फर्स्ट केस में अगर मैं सोचूं तो इसमें अमर के पास क्या बचा है, यहाँ पे 373, इसको 2 नंबर इसमें से देना पड़ेगा 373 में से, एंड भरत इज टेकन केयर ऑफ, चार्ल्स इज टेकन केयर ऑफ, दिशा इज नो, दिशा का भी अगेन 553 में से आएगा, और एलिस इज टेकन केयर ऑफ। तो होगा क्या इस फर्स्ट सिनेरियो के हिसाब से, इस फर्स्ट सिनेरियो में अमर का इन 3 में से कोई 2 नंबर देंगे, और जो थर्ड नंबर उसी कॉलम में देखोगे तो वो किसका आएगा, दिशा का आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से कि अमर का 3 and 7 है तो फिर दिशा का क्या आना पड़ेगा, 3 आना पड़ेगा। अगर 7 and 3 है तो फिर इसका कितना आना पड़ेगा, 5 आना पड़ेगा, राइट। तो कुछ ऐसा सिनेरियो आपका बन रहा है। नाउ एक चीज ये समझना, अमर एंड दिशा, दीज आर द 2 people who have less than 16, ये तो हमें क्लियर कट पता है, राइट। अब जो एनवी वाला लॉजिक था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस सेट, राइट। एनवी वाला लॉजिक ये था ना कि जिसका लेस देन 16 है, नॉट बोथ ऑफ देम विल एनवी, सम पीपल हुज वैल्यू इज लेस देन 16, सेल्फ वैल्यूएशन वाला लेस देन 16 है, दे विल एनवी whom, whose सेल्फ वैल्यूएशन इज 60। तो एक चीज ये याद रखना, कभी भी अमर जो है वो दिशा को एनवी नहीं कर सकता है, राइट। लाइक बिलो 16 वाला नंबर बिलो 16 वाले को एनवी नहीं करेगा, बिलो 16 वाला नंबर 16 वाले को एनवी करेगा। सो आप ये चेक कर लो कि जैसे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप करने वाले हो यहाँ पे, कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी जहां पे अमर दिशा को एनवी कर रहा है या वाइस वर्सा। तो अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया तो दैट केस इज नॉट पॉसिबल, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। नाउ जैसे अगर मैं चेक करूं अमर का सेल्फ वैल्यूएशन क्या हो सकता है, अमर का सेल्फ वैल्यूएशन अगर यहां से चेक करें तो either it is 3 plus 3 6 self valuation, either it is 3 plus 3 6 या फिर a 7 and a 3 that is 10। तो अमर का सेल्फ वैल्यूएशन कितना होगा, या तो 6 हो सकता है या तो 10, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। अच्छा, when it comes to अमर्स वैल्यूएशन फॉर दिशा, अमर्स वैल्यूएशन फॉर दिशा, तो अब अमर का अगर दिशा का वैल्यूएशन देखना है आपको, राइट, तो दिशा का क्या हो सकता है, अगर ये दोनों 5 हुए तो ये उसको 7 plus 3 10 पे वैल्यू कर रहा होगा। अच्छा, अगर ये 5 plus 3 हुआ तब भी ये 10 कर रहा होगा। अगर ये 5 and 3 हुआ, सॉरी माय बैड, इसमें एक नंबर देखना है, माय बैड। अमर दिशा का जब वैल्यूएशन करेगा तो दिशा का ये 8 एक फिक्स है ना, तो 9 plus समथिंग करेगा, राइट, 9 plus समथिंग। अब ऐसे समझना, अमर का खुद का वैल्यूएशन इट इज आइदर 6 और 10 डिपेंडिंग कि आप 3 उठाते हो या फिर 7 उठाते हो। अमर का दिशा का जो वैल्यूएशन होगा वो क्या होगा, ये एक 9 तो फिक्स रहेगा। अच्छा, इस 553 में से कुछ भी आ जाए, लिटरली कुछ भी आ जाए, 9 प्लस अगर इनमें से लीस्ट नंबर भी देखोगे तब भी 3 मिलेगा, तो 9 plus 3 से उसका वैल्यूएशन 12 हो जाएगा, राइट। व्हाट आई एम सेइंग इज अमर का सेल्फ वैल्यूएशन इट इज आइदर ऑफ द टू, आइदर इट इज 6 और 10, बट अमर के लिए दिशा का वैल्यूएशन जो है, अमर ने दिशा का जो बंडल का वैल्यूएशन करा है, इट हैज टू बी अ मिनिमम ऑफ 9 plus 3 दैट इज 12। इन दैट केस अमर जिसका 16 से नीचे है इज गोइंग टू एनवी दिशा, बिकॉज दिशा का उससे ज्यादा है। यही चीज इसने मना कर रखी थी, बिकॉज इसने क्लियर कट बोला है कि बिलो 16
बिलो 16 वाला किसको एनवी करेगा? जिसका सेल्फ वैल्यूएशन 16 है। तो हमने क्लियर कट अभी डिफाइन किया था ना थोड़ी देर पहले कि अमर दिशा को कभी एनवी नहीं कर सकता एंड वाइस वर्सा, दिशा अमर को एनवी नहीं कर सकती। दैट सिंपली मीन्स कि ये वाला पूरा केस क्या हो जाएगा? आपका एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि ये वाला आपका केस नहीं बनने वाला। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट पार्ट, लास्ट सीक्वेंस। इसी से आपको जो भी नंबर मिलना है इसी से मिल जाना चाहिए। तो अब क्या है करंट सिनेरियो? सेकंड वाले पे आते हैं। अमर में आपको क्या चाहिए? एक नंबर चाहिए, राइट। एक नंबर आपको कहां से चाहिए? वही अगेन 3, 7 एंड 3 से चाहिए। भरत का इट इज टेकन केयर ऑफ, चार्ल्स का इट इज टेकन केयर ऑफ, दिशा का अगेन 5, 5, 3 में से नंबर आना चाहिए। तो दो नंबर, एक नंबर यहां से पिक करेंगे। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पे और क्रॉस आउट कर देना चाहिए था, मैंने करा नहीं। ये 6 आपका सिलेक्टेड है ना, तो यहाँ पे ये 7 भी नहीं है, यहाँ पे ये 5 भी नहीं है। सेकंड सिनेरियो में ये रह गया था, ठीक है। ये 7 और 5 भी कट जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा आपको चेक करना पड़ेगा। अमर का देखो दोनों जगह 3 है, तो उसका वैल्यूएशन अल्टीमेटली अमर का खुद का कितना है? 12 ही रहेगा, राइट। इस 9 के साथ या तो ये 3 होगा या तो ये 3 होगा। इन एनी केस अमर खुद का वैल्यूएशन कितना कर रहा है? 12 कर रहा है। नाउ बस चेक कर लो, मान लो ये वाला केस है, राइट। ये वाला अगर हम 3 लेते हैं, तो अगर ये वाला 3 O4 गया अमर के पास, तो दिशा में क्या गया? O6 गया। तो हम अब चेक कर लेते हैं कि ये वो जो वैल्यूएशन एनवी वाला लॉजिक है वो कहीं कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा। तो अगर यही सिनारियो है तो अमर का तो सेल्फ वैल्यूएशन लाइक 9 + 3 12 हुआ। फिर उस केस में दिशा का ये वाला हुआ O1 के करस्पॉन्डिंग और ये O6। तो अमर इसकी वैल्यूएशन कितनी कर रहा होगा? 4 + 3 दैट इज 7। तो 12 और 7 वैल्यूएशन, तो अमर उसको एनवी नहीं करेगा। दिस इज परफेक्टली फाइन। लेट्स चेक द अदर वे राउंड। अगर यही रखा मैंने, फॉर एग्जांपल, अब इसको हटाते हैं, अगर यही रखा मैंने, इधर 3 रखा ये वाला और इस वाले में दिशा में ये वाला 3 सेलेक्ट करा, तो दिशा का खुद का वैल्यूएशन कितना हुआ? 8 + 3। 8 + 3 इज व्हाट? 11, राइट। 8 + 3 इज 11। नाउ दिशा अमर का वैल्यू क्या करेगी बंडल? तो अमर के पास क्या हुआ? 9 and 3, राइट। बस 9 और 3 इसके करस्पॉन्डिंग दिशा वो वैल्यू क्या कर रही होगी? 8 और 5 दैट इज 13। यहां प्रॉब्लम आ गई कि अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो दिशा का 11 है सेल्फ वैल्यूएशन, बट दिशा अमर का वैल्यू कितना कर रही है? 13 कर रही है, राइट। तो फिर यहां पे तो एनवी कर जाएगी, बट दिशा के नॉट एनवी अमर। दैट मीन्स दिस सिनेरियो इज नॉट पॉसिबल। तो जो बिल्कुल लास्ट आपकी पॉसिबिलिटी बची है वही बनेगा। यहां से ये 3 नहीं आएगा और यहां से ये 3 नहीं आएगा। इट हैज टू बी द अदर वे अराउंड। दैट मीन्स यहां से ये वाला 3 पिक होगा, ये पूरा क्रॉस आउट हो जाएगा, ये क्रॉस आउट हो जाएगा और यहां से ये वाला 5 आएगा। नाउ यू कैन सिंपली गो अहेड एंड चेक, कोई आपको प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। तो अमर का आप नोटिस करो, अमर का सेल्फ वैल्यूएशन कितना हो गया आपका? 12 हो गया। अमर जो है वो दिशा का कितना वैल्यू कर रहा है? ऊपर 3 और यहाँ पे 4, 7, परफेक्टली फाइन। तो इनवी नहीं हुआ। अदर वे राउंड चेक कर लो, दिशा का सेल्फ वैल्यूएशन कितना हुआ आपका? 13 हुआ। 8 + 5, राइट। और दिशा अमर की वैल्यूएशन कितना करेगी? 8 + 3 दैट इज 11। तो अगेन 13 इज ग्रेटर देन 11, तो दिशा विल नॉट एनवी अमर, राइट। एंड दैट इज द एंटायर सेट फॉर यू। यूनिकली आप एक्चुअली में स्पेसिफाई कर सकते हो कि किसके पास कौन सा बंडल है, राइट। सो दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट सेट आई वुड से, बिकॉज यहाँ पे काफी कुछ एनालिटिकली सोचना है, बहुत कुछ कैलकुलेशन नहीं है। बट येस दैट एनवी वाला पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो आई वुड से, एंड ऑल्सो अ लिटिल डिफिकल्ट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम ऑल्सो। तो थोड़ा सा आपको पेशेंटली काम करना पड़ेगा। सो आई एंजॉयड वेरी मच सॉल्विंग दिस सेट। लेट मी नो आपको कैसा लगा, ठीक है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज आपको लगी इस पर्टिकुलर सेट में, लेट मी नो, राइट। एंड लेट्स डायरेक्टली गो टू द प्रॉब्लम्स। काफी कुछ यूनिक है, सो आंसर शुड बी ओके फॉर अस। सो व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट ऑब्जेक्ट O8? तो सेकंड सिनेरियो देख रहे हैं, राइट। O8 किसके पास है? O8 was given to Charles, so fourth option is correct. Who among the following envies someone else? Who among the following? तो भरत, चार्ल्स और एलिस, भरत, चार्ल्स और एलिस, भरत, चार्ल्स एंड एलिस के पास तो 16 है, दे विल नॉट एनवी अदर पर्सन। तो इसमें से कौन एनवी करेगा? अमर करेगा, राइट, बिलो 16 वाला। अच्छा, व्हाट इज अमर्स वैल्यू फॉर हिज ओन बंडल? तो अमर्स वैल्यू फॉर हिज ओन बंडल वुड बी 9 + 3, हमने निकाला था, दैट इज 12. Object O4 was given to, so object O4 was given to Disha, so this has to be Disha. And fifth, object O5 was given to, object O5 was given to Elise, right? So this has to be Elise.
एंड फाइनली व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट O1 हम बता सकते हैं. तो O1 किसके पास गया? Disha, राइट. तो O1 was given to Disha. That is the fourth option. Right, so I hope you understood this set. If you have any doubts, as always, you can just put that in the comments. Hope you are also doing well and your CAT preparation is going on fine. Right, thank you.